हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अपने घरों में अच्छे से रह रहे होंगे। फैंटेसी नेशन 11 के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं ए लीग का मैच जो कि वेलिंगटन फीनिक्स और न्यूकासल जेट्स के बीच में खेले जाने वाला है उसको कवर करूँगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड में आपके लिए कुछ ग्रैंड लीग टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं आप ए लीग के मैच में अपनी ग्रैंड लीग की टीम्स बनाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मैच के बारे में बात करने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा सोशल मीडिया पेज है ट्विटर का, फैंटेसी नेशन 11 @नेशन11 ये हमारा ट्विटर हैंडल है। हम यहाँ पर जितनी भी हमारे चैनल की अपडेट्स हैं, हमारे फैंटेसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इन जनरल अपडेट्स, हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स, हमारे रिजल्ट्स, सारी चीज़ें हम यहीं पर पोस्ट करते हैं। तो आप जल्दी जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे कल के मैचेस के कुछ रिजल्ट्स हैं, किस तरह से हमने इजीली विन किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट डिफरेंस कितना ज़्यादा है। और हम वीडियो एनालिसिस भी देते हैं, वो भी यहीं पर पोस्ट होती हैं। तो आप जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिएगा, आपको सारी अपडेट्स यहीं पर मिल जाएंगी। और ये हमारा फैंटेसी नेशन 11 का ट्विटर चैनल है। यहाँ पर आपको सारी फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल और क्रिकेट, सारे स्पोर्ट्स की आपको टीम्स यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आप जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ चैनल से रिलेटेड बातें। चलिए मैच के बारे में बात करते हैं। A League's round 26 match, which will be played between Newcastle Jets and Wellington Phoenix, will be played at 3:30 today Indian Standard Time. To talk about the standings in the table, Wellington Phoenix is third, playing 25 matches, winning 12 of them, drawing 5 and losing 8, whereas Newcastle Jets is on the 9th position in the table with 25 matches played, 8 wins, 7 draws and 10 losses. To talk about the recent form, Jets have been in a really good form, winning 3 of the last 5 matches, drawing 1 and losing 1. They won against Western United by a score of 1-0, in which O'Donovan scored their only goal. They drew by a score of 0-0 against Central Coast Mariners and won against 2-1 won against Sydney by a score of 2-1, in which Fitzgerald and Petrautas scored 1 goal each. To talk about Phoenix's form, they haven't been in a really great form. They have won one of their last 5 matches, drawn 2 and lost 2. They drew their last match against Brisbane Roar by a score of 1-1, in which Hooper scored their only goal. They lost to Western Sydney by a score of 1-0 and drew their match against Adelaide United by a score of 1-1, in which Soterio scored their only goal. Head-to-head matches. They played for the first time in this season in January, in which Phoenix won by a score of 2-1, in which Soterio and Davia scored from Phoenix, and the only goal scored by Jets was by Arroyo. Before that, Phoenix won by a score of 4-1 against Jets, in which Williams scored 3 goals and Singh scored 1 goal, and from Jets, O'Donovan scored their only goal. To talk about the top players, here you can see their statistics. Petrautas, who has scored 5 goals and 8 assists this season. Ugrakovic, 4 goals, 1 assist. Miller, 4 goals, 3 assists. O'Donovan, 4 goals, 1 assist. Topper Stanley, 3 goals and 3 goals. Thurgate with 2 goals and 1 assist. Arroyo, 2 goals with 3 assists. To talk about top players from Phoenix, Udavia has scored 12 goals, the most this season by Wellington Phoenix, with 5 assists. Hooper, 8 goals and 4 assists. Ball, 6 goals and 4 assists. Soterio, 4 goals and 2 assists. Cases, who is their defender, has scored 3 goals and given 1 assist till now. Piscopo, 2 goals and 3 assists. And S. Taylor with 1 goal. Let me show you a default team here. I have taken Hooper, Soterio and O'Donovan in the striker section. All the 3 players are the strikers of their respective teams. Hooper has been in a great form, just like you saw in the statistics, along with UW, who has scored the most number of goals in the midfield from Wellington.
along with Soterio has also been an occasional scorer and has been performing really well whenever he is given a chance. You can also switch him for D ball as well if he plays, and in the midfield you can also take you can drop Piscopo, who is a bit on the riskier side, and take Urakovic just to be on the safer side in the midfield as well. For today's match, my captain will be Yu Davia, and vice captain will be G Hooper. You can also make O'Donovan as your vice captain if you I think he can score, and today's match I don't think any team will keep a clean sheet. Both the teams can score, and this might be a goal fest for today. This league is a little unpredictable, so anything can happen today, but I'm really sure both the teams will be scoring today. You can also make Ograkovic as your vice captain. He's also a really good choice, or D Ball as your vice captain choice. Petrotas, who has been their top scorer in this season, I have taken him in the midfield as well. In the defense, I have taken Jackson, Taylor, T-Pain and Cassis. Cassis, who has a goal scoring potential and can do a lot of passes, which will give you really good points from him. T-Pain and Esteller also do a lot of passes and can be a really good pick for today's match. Goalkeeper would be Italiano, and I have taken Jackson from Phoenix in the defender section as well. You can also drop Italiano and take Marinovic if you feel that Wellington will keep a clean sheet, just to be on the safer side. So this was my default team. मेरे हिंदी भाइयों के लिए मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ. स्ट्राइकर सेक्शन में मैंने जी ऊपर डी बॉल और ओडोनोवन को लिया है. यहाँ पे आप डी बॉल को ड्रॉप करके आप सोटरियो को ले सकते हैं. सोटरियो मेरी पहली चॉइस थे डी बॉल के ऊपर. वाइस कैप्टन मेरे ऊपर रहेंगे और कैप्टन मेरे यू डेविया, जो कि इस सीज़न सबसे ज़्यादा गोल स्कोर कर चुके हैं वेलिंगटन की तरफ से. और मिडफील्ड में मैंने उग्राकोविच और पेट्रोटस को लिया है. पेट्रोटस और उग्राकोविच को लिया है यहाँ पे मैंने मिडफील्ड में, और एल जैक्सन को मैंने डिफेंस में लिया है. अब गोलकीपर में मैंने मारिनोविच को लिया है. आप चाहें तो इटालियानो को भी ले सकते हैं. दोनों ही बहुत ही बढ़िया चॉइस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मारिनोविच को लेते हैं और गलती से अगर वेलिंगटन जो है क्लीन शीट रखती है तो आपके पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स का फ़ायदा हो जाएगा. इसलिए मैंने मारिनोविच जो है वो मेरी आज की गोलकीपर की पहली चॉइस रहेंगे. एल जैक्सन जो हैं ज़्यादा नंबर ऑफ पासेस करते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा गोल्स खा गई न्यूकासल जेट्स तो जैक्सन को नेगेटिव पॉइंट्स मिल सकते हैं. थोड़ी सी रिस्की चॉइस है. अगर आप एल जैक्सन को ड्रॉप करना चाहते हैं यहाँ पे तो आपके पास 0.5 क्रेडिट्स और हैं, तो आप मिडफील्ड में आप किसी को ले सकते हैं. और मिडफील्ड में आप मिलर को ले सकते हैं, या फिर आप पिस्कोपो को ले सकते हैं और हॉफमैन को ले सकते हैं. थोड़ी सी रिस्की चॉइस है मिडफील्ड में, लेकिन सेफर साइड पे रहने के लिए आप ले सकते हैं उनको, जस्ट बिकॉज डिफेंस में आप नहीं चाहते कि आपके डिफेंडर्स को नेगेटिव पॉइंट्स मिलें. आप डेविया को भी ले सकते हैं. ये भी आपके पास बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है. डेविया में ज़्यादा सेफर चॉइस रहेंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पे डेविया को 85% लोगों ने पिक किया है अपनी टीम में. वहीं पर हूपर को 81% लोगों ने, ओडोनोवन को 69% लोगों ने अपनी टीम में पिक किया है. तो ऐसे प्लेयर्स भी, उग्राकोविच को 69% लोगों ने लिया है. तो ऐसे प्लेयर्स आपकी टीम के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं पिक करना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने उनको अपनी टीम में लिया होता है, और अगर गलती से आपकी टीम में नहीं हुआ तो आप हार भी सकते हैं. और कुछ प्लेयर्स आपको ऐसे भी लेने पड़ते हैं जो कि कम परसेंटेज लोगों के लिए ने अपनी टीम में लिए होते हैं, ताकि जो है आपकी और उनकी टीम में कुछ डिफरेंशिएटिंग प्लेयर्स रहेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है. और अगर गलती से उन प्लेयर्स ने परफॉर्म कर दिया तो आपको जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता. तो ये थी मेरी डिफ़ॉल्ट टीम आज की और यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल टीम जो है वो यहाँ पर आ जाएगी. तो आप जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा. लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो आप जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा. लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज़ हो, तो आप हमारे एडमिन्स को यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हमारे एडमिन जितना जल्दी हो सके और जितना
सही तरीके से हो सके उतनी सही तरीके से आपकी क्वेरीज़ को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।